dear students, already we discussed about this topic magnetic fields and magnetic field lines because it's a lot of things are similar here. So at first we discussed the definition of magnetic field lines. Okay, so what is magnetic field lines? You can see here the definition of magnetic field lines: the space around a magnet in which its influence can be felt is called magnetic field, and a magnetic field lines is an imaginary line. It's not a real line, it's an imaginary line. The tangent, you can see here, you are drawing the tangent from this point. If you consider this point is P, the tangent to which at any point gives the direction of field at that point, because at point P the direction of magnetic field lines is along this direction, which you can say that it's a PA. Where is the tangent? This tangent represents the direction of magnetic field lines of B. This is the magnetic field lines B, and the tangent draw which gives the direction of magnetic field lines at particular this point P. Okay, now we come on the characteristics of magnetic field lines. What is the characteristics of magnetic field lines? Number one, outside a magnet, magnetic field lines are from north to south pole. This is the common thing. This is the common part. Already you know about all things, the property of magnet. In spite of this, we are just go through all this part. Okay, you can see here magnetic field lines comes out from north and it enters to the south. It comes out from north and enters to the south pole, while inside from south to north. In case, yes, one thing you can also remember कि अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व्स. अब यू कैन सी हियर, ये क्या कर रहा है, ये कम्प्लीटली एक क्लोज्ड कर्व बना रहा है. तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व. ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्लोज कर्व नहीं बनते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड कर्व्स. क्योंकि ये कंपैरिजन करने के लिए आता भी है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया है. ओके, नंबर टू characteristics of magnetic field lines. It's the number 2. The number of magnetic field lines originating or terminating on a pole are proportional to its strength. कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर आप ये सोचो कि ये जो पोल्स हैं, इस पोल से अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा अगर इससे निकल रही हैं, इसमें इंटर कर रही है, और इसमें से नॉर्थ पोल से ज़्यादा निकल रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग होगी. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इसकी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी. इफ़ यू कंसिडर दैट some number of magnetic field lines, if you imagine कि not a lot of number of field lines entering or not a lot of field lines comes out from north pole, then obviously the strength of this magnet will be less compared to the other magnet. तो जिसमें ज़्यादा number of magnetic field lines किसी पोल्स में इंटर कर रही होगी, अगर या फिर ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे बाहर निकल रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी. म्यू नॉट लाइंस आर एज्यूम टू बी एसोसिएटेड विथ यूनिट पोल. ओके, सो इफ अ बॉडी इनक्लोजेज अ पोल ऑफ स्ट्रेंथ m, अगर कोई पोल का स्ट्रेंथ, मैग्नेट की पोल का एक स्ट्रेंथ है यहाँ पे, इसको अगर आपने m कंसिडर कर लिया, तो टोटल लाइंस ऑफ फोर्स लिंक्ड विद द बॉडी कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी म्यू नॉट m. देखिए, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि भाई कितना उससे जो इस पोर्शन से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें इंटर कर रही है या उससे कितनी निकल रही है, वो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है,
अब मैं आता हूँ तीसरे प्रॉपर्टीज पे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रिक की होती है वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैग्नेट की हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, राइट। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड एक्सपेंड लैटरली। देखिए लॉन्गिट्यूडनली एक्सपैंड हो रहा है, ये लैटरली साइड से आप ये देखो, ये लैटरली एक्सपैंड हो रहा है, और लॉन्गिट्यूडनली जो है ये क्या होता है, ये एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, एक दूसरे से काफी क्लोज आता जा रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनली ये एक दूसरे के काफी कॉन्ट्रैक्ट में आता है, काफी क्लोज में आता है। लेकिन जहां तक सवाल है इसके लिए लैटरली की बात कर रहे हो आप, तो लैटरली ये थोड़ा एक्सपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे इसके पोल से आप दूर जाओगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे के सेपरेट होती चली जाएगी, उसके बीच का गैप जो है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। और एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉपर्टी है जो अनलाइक पोल्स जो है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे कि ये नॉर्थ है, यहाँ पे ये साउथ है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जो लाइक्स पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉपर्टी है, ये आपको तो पता है। नंबर फिफ्थ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। कि कितनी किसी भी यूनिट एरिया से, ये देखो आप ये क्या कर रहे हैं, यूनिट एरिया, किसी भी यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होके जा रही है नॉर्मली द एरिया एट दैट पॉइंट, वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड को ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर के मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड को वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसे भी हमें देखना पड़ेगा कि जितनी ज़्यादा जाएगी वहाँ पे उतने ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 6, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड continuous loops. Here the magnetic field lines differ from the electric field lines. यहाँ पे जैसे कि लूप के बारे में मैंने पहले बताया कि ये लूप के सेंस में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती है, which are not in form of closed loop, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। Now we will discuss about the earth magnetism. Before the study of the property of earth, how earth behaves like a magnet, just go through the basic nature of earth and some concerning terms related to the earth. First one is geographic meridian. You know what is geographic meridian? Obviously you will study this part in your geography, but this time I am go through once again. A vertical plane passing through the geographic axis and point of observation is called the geographic meridian. Geographic meridian क्या है? जो vertical line जो है वो पास करती है geographic axis से, and the point of observation जहाँ से आप observe करते रहते हो इसको, उसको बोला जाता है geographic meridian. Magnetic meridian, a vertical plane passing through north-south line of a freely suspended magnet and point of observation is called the magnetic meridian. इस पॉइंट को बोला जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। यू कैन सी हियर इन डायग्राम कि कौन सा ज्योग्राफिक मेरिडियन है। या आप देखो यहाँ पे इस जगह से ए से बी डैश जो ये दिखाया गया है, ये एक प्लेन मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन को दिखा रहा है। एंड सेकेंड वन, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन आप देख रहे हो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, दिस वन प्लेन, दिस वन इज मैग्नेटिक मेरिडियन। और जस्ट इसके बैक वाला ये जो प्लेन है आपका, इस प्लेन को आप कह सकते हो ज्योग्राफिक मेरिडियन। ओके, तो दो तरह के यहाँ पे ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। नाउ वी कम ऑन अर्थ एलिमेंट, अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट।
तो कौन कौन सी अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा चैप्टर ही थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे आपको एक बार जितनी भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे आपको दिखा दी जाए ताकि ये आसान हो जाए और डिफिनेशन जो टर्मिनोलॉजी है इससे रिलेटेड वो चीज़ आपके नॉलेज में आ जाए। तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग टर्म से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे अलग अलग बुक में उस तरह से होता है, तो उस पर नहीं जाना है हमारा। यहाँ पे आपने थीटा लिया है, डोंट वरी। इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एंड geographic meridian at that place, or you can see in this diagram, here is the theta, you can see in this diagram, this one is theta। जस्ट एक बुक की तरह आप एक बुक को खोल लो और बुक को खोल के उसमें आप देख सकते हो इजीली, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये जो है इसको मैंने इस तरह से ओपन कर दिया, देख सकते हो आप, इसको मैंने इस तरह से ओपन कर दिया है दो पार्ट में, राइट। इस तरह से मैंने ओपन कर दिया है और इसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, आप देखो इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो ये बुक का ये जो एंगल है, एक वाला बैक वाला जो पोर्शन है वो ए बी डैश है और ये फ्रंट वाला जो हमारा पोर्शन है वो ए बी है। इस दोनों के बीच जो एंगल बन रही है वो एंगल है ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक तो ज्योग्राफिक मेरिडियन है ये वाला बैक वाला, और ये कौन सा है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। जो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल बन रही है, ये वाली जो एंगल बन रही है, इसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोला जाएगा। ठीक है, द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ओके, और नंबर 2 इज मैग्नेटिक डिप, जिसको यहाँ पे डेल्टा से रिप्रेजेंट किया गया है। तो मैग्नेटिक डिप क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन वाइज मैग्नेटिक डिप और इंक्लिनेशन दोनों ही नाम आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो, मैग्नेटिक डिप और इंक्लिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। ठीक है, ये भी एक तरह का एंगल ही है, किसके बीच का, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। जैसा कि आपने एनिमेशन में देखा है, मैंने जो रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया था। तो यहाँ पे आपके पास अब जो है तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर थर्ड पॉइंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दिस वन इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल H. It is a component of the total intensity of the earth magnetic field in horizontal direction in magnetic meridian। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आप देख सकते हो यहाँ पे H इक्वल टू किससे रिप्रेजेंट किया गया है, R cos डेल्टा से, और वर्टिकल कंपोनेंट एक होता है जिसको R sin डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो दो तरह के कंपोनेंट हो गए, और यहाँ पे आप इसको अगर आप इक्वेशन 1 ले लेते हो और सेकेंड वाले को इक्वेशन 2, इसको मैंने मान लो कि इसको इक्वेशन 1 ले लिया, ऐसे इस तरह से बॉक्स में डाल दिया, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया और सेकंड वाले को इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, देन स्क्वायरिंग। पहले एडिंग करने के पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप स्क्वायरिंग कर लो पहले, स्क्वायरिंग 1 एंड 2, देन ऐड, उसके बाद आप ऐड करो। तो यहाँ पे देखो, पहले का स्क्वायरिंग किया एच स्क्वायर, दूसरे का किया तो वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, तो बचेगा आपके पास आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू जो हो गया आपका एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट, ये वैल्यू आ गई, और टेन डेल्टा जो है वो आ गया आपके पास वी बाय एच। ठीक है, तो ये दोनों ही टर्म्स हमारे पास आ चुके हैं। Now next term is term used to study magnetic material. Which terms we are going to use further to study related to
magnetic materials. Magnetic materials are studied in terms of following physical parameters. For example, first parameter is intensity of magnetization. This one is represented by I. Induced dipole moment developed per unit volume is known as intensity of magnetization. Must remember this one. All terms you have to remember this. Intensity of magnetization I equal to m upon v. M upon v. Yes, m is the dipole moment. M is, you can see here, m is dipole moment and v is the volume. And dipole moment is represented as m into 2l. N is represented the direction. N cap, this one gives the direction. Basically, dipole moment capital M equal to small m into 2l. And small m is the magnetic strength and 2l is the length between the poles. And area, you can represent this one area into 2l. Area into 2l gives the volume, because area, the unit of area is meter square and the unit of length is meter. Overall this one becomes meter cube. So the volume, that means dipole moment per unit volume, is known as intensity of magnetization. That is, intensity of magnetization is numerically equal to the induced dipole strength per unit area of cross section, and it is a vector quantity having some direction of magnetizing field. Its SI unit is ampere per meter and the dimension is AL inverse. Next term is intensity of magnetizing field. This one is represented by capital H, and magnetic field produced due to magnetizing current only. Magnetic field produced due to magnetizing current only, and this one is represented by intensity of magnetization. Its magnitude may be defined as, and you can also define intensity of magnetization like this. Its magnitude may be defined as the number of ampere turns, amperes turns. That is, what is this means? This means N into I. I is the current and N is the number of turns, just like you have seen in your solenoid flowing around the unit length. Flowing around the unit length, right, of the solenoid, required to produce magnetizing field. Yes, magnetizing field. And what about the formula of this one? This one, since this one is represented as H, then the formula is H equal to, I'm writing here, H equal to N into I. And for the solenoid, as you know well, for solenoid formula is B equal to mu naught into Ni. So Ni is H, so you can
also write this one like this, mu naught, and instead of Ni you can write H. This one becomes B naught equal to mu naught into H, and you can get the value finally get the value of H, which will be H equal to B naught upon mu naught. Yes, B naught upon mu naught. This is the formula which is thoroughly used for numericals. So this is the final relation between B, H, B naught, H, and mu naught. Next term is magnetic susceptibility. And magnetic susceptibility, as you can see here, this one is given as the ratio of intensity of magnetization to the intensity of magnetizing field, I upon H. And this one is represented by, this one is known as, yes, chi m, implies that material is more susceptible to the field. Next term is magnetic permeability, represented by mu, and mu is equal to B, that means total field, and the ratio of B upon H, which is H is intensity of magnetizing field. We discussed in B, in part B. You can see here this intensity of magnetizing field, which is represented by H. So here is also mu naught, mu equal to B upon H, total magnetic field, ratio of total magnetic field to the intensity of magnetizing field. And from this relation you can also get B equal to mu into H. It measures the degree to which a magnetic material can be permeated by magnetizing field, and is a scalar having unit. You can see the unit of this one. I can show you unit of this one. The unit of this one is Tm upon A. Yes. And the dimension of magnetic permeability is this one. It's a permeability ml T minus 2 A minus 2. Relative permeability mu r, represented by mu r, and this one is given by the ratio of total field to the magnetizing field. So you can write B in terms of intensity of magnetizing field, mu H upon mu naught H. You can cancel both sides, numerator and denominator H, and finally you get the value of mu by mu naught. That means relative permeability mu r equal to mu upon mu naught. This one is the final result of relative permeability, and it has no unit and no dimension. It has no unit and no dimension. Okay. Now we are going to discuss relation between permeability and susceptibility. What is the relation between permeability and susceptibility? So at first we can read the above paragraph. When a magnetic material is placed in a magnetizing field, for it's magnetizing, the field inside the magnetic material is the resultant of the magnetizing field B naught and induced field Bm. As you can see here in diagram, this is the magnetic material, this is the magnetic material, and you place this magnetic material, as you can see in the statement, placed in magnetizing field or for its magnetization
the field inside the magnetic material is the resultant. Which one is the resultant? Resultant of which one? Resultant of B naught, which is magnetizing field, and the induced magnetic field, which is Bm. So the resultant, total resultant will becomes B equal to B naught plus Bm, and from formula B naught equal to mu naught H and Bm equal to mu naught I. Then mu naught I and B naught equal to mu naught H. This one Bm equal to mu naught I, mu naught I, this one. Then finally you can see here in this part, by the definition of intensity of magnetizing field and intensity of magnetization, B equal to mu naught H plus I, mu naught H plus I. As we can see from the above part, I want to show you this one B and just little bit above part. Yes, this one. As you can see here, B equal to B naught plus Bm, right? This one part, and B naught is equal to mu naught H plus Bm equal to mu naught I. So you can take common as B naught mu naught, then it will be only you get the in small bracket H plus I, this one, and then B upon H. If you are going to divide both sides, just like I am showing you, B equal to mu naught H plus I, and if we want to just divide both sides by H like this, then what you get the final result, it will be like same like of that, B by H equal to mu naught 1 plus I by H, and I by H is susceptibility. So you can write I by H, this one I by H as a susceptibility, and 1 plus susceptibility. B by H is equal to mu, so you can write mu equal to mu naught 1 plus susceptibility. This is the relation. This is the relation between the susceptibility, permeability, susceptibility and the permeability, and the relative permeability. You can also get the relation with it concerning to relative permeability. For example, you can see here further mu by mu naught. If you go through the dividing mu, this one, and just denominator to mu naught, mu by mu naught, you get on right side LHS side, LHS side you get mu by mu naught, and RHS side we get 1 plus susceptibility, and mu by mu naught is equal to mu r. So relative permeability is the sum of 1 plus susceptibility, 1 plus susceptibility, and this is the relation between relative permeability and the susceptibility. अब हम लोग मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, किसका? मैग्नेटिक मटेरियल्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो अकॉर्डिंग टू फैराडे, all magnetic materials can be divided into classes, 3 classes: diamagnetic substances, paramagnetic substances and ferromagnetic substances. Number 1 is diamagnetic substances. What is diamagnetic substances? Those substances which when placed in external magnetic field get weakly magnetized in opposite direction of magnetic field. For example, this one is the element bismuth, antimony, lead, zinc, phosphorus, tin, copper, water, hydrogen, and all inert gases. These all are the example of diamagnetic substance. Properties of diamagnetic material. What are the properties of diamagnetic material? So you can see here the properties. Number 1, there are a lot of properties,
but we are going through one by one on all the properties. Number one, of properties of diamagnetic material. The magnetic lines try to avoid passing through the magnetic material. Magnetic material, just like if you select magnetic material, bismuth, antimony, zinc, phosphorus, copper, water, like this, such type of element, and you pass through this element through a magnetic field lines, then it will just avoid the passing through the magnetic material. Most of the lines pass through outside the magnetic material. As you can see here, ये बाहर से ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, अंदर से वो अवॉइड ही करता है कि ना ही जाए। तो ये बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हो, ये इस तरह से पास हो रही हैं। नंबर 2 प्रॉपर्टी आप देख सकते हो। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करता हूँ। नंबर 2, डायमैग्नेटिक रॉड्स, जो आप डायमैग्नेटिक रॉड आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में, ये डायमैग्नेटिक रॉड है, एरो मार्क से दिखा रखा है यहाँ पे, ये डायमैग्नेटिक रॉड है। सेट इटसेल्फ एट राइट एंगल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब नॉर्थ और साउथ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इधर से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। अगर आप डायमैग्नेटिक रॉड को प्लेस करते हो इसके बीच में, तो ये क्या होता है, ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड ये रही आपकी, ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री की एंगल बना लेता है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट में आप प्रॉपर्टी नंबर 3 देख सकते हो यहाँ पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है आपके लिए, तो आप यहाँ पे देखो कि अ डायमैग्नेटिक लिक्विड इन यू ट्यूब डिप्रेस्ड इन द लिम्ब। अब आपने क्या किया, इस बार आपने यू ट्यूब में डायमैग्नेटिक लिक्विड ले लिया, इस तरह की यूट्यूब बनी हुई है, इसमें डायमैग्नेटिक लिक्विड ले लिया, और जब आपने इसको इसकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से प्लेस किया, तो आपने क्या देखा कि ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इस तरफ डिप्रेस्ड हो रहा है। इस तरफ डिप्रेस्ड होता है तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, लिक्विड का दूसरे यूट्यूब के दूसरे लिंक पार्ट में इसकी जो है इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। फोर्थ पार्ट, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड निगेटिव। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, स्मॉल होती है और निगेटिव होती है। ये चीज हमेशा याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू देके XYZ कोई भी वैल्यू देके नेगेटिव लिख देता है, अब पूछा जाता है किस तरह का सब्सटेंस है, तो वो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होगा, हमेशा याद रखना। अब चाहे उसकी वैल्यू कैसी भी रखी जाए, वो हमेशा निगेटिव वैल्यू को ही, निगेटिव वैल्यू जो भी निगेटिव वैल्यू से लेके जो सब्सटेंस निगेटिव वैल्यू लेके आएगा वो किस तरह का सब्सटेंस माना जाएगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है। नंबर 5, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्लाइटली लेस देन 1। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है ना, म्यू आर इज पॉजिटिव, ये तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ग्रेटर देन होगा जो भी होगा, और स्लाइटली लेस देन 1, और लेस देन 1 से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, म्यू आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव है, और स्लाइटली लेस देन थोड़ा सा छोटा होता है 1 से, तो 1 से थोड़ी सी छोटी रह जाएगा। 6% ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर से ये इंडिपेंडेंट रहेगा हमेशा ही। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हमें इस तरह की प्रॉपर्टी हमें से देखने को मिलेगी। मैंने यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी डिस्कस की, और भी बहुत सारे हैं, उसको मैं भी एक एक करके डिस्कस करूंगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दो सब्सटेंसेस व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड in direction of magnetizing field। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास है सोडियम, पोटाशियम, है ना, मैग्नीज, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड सो ऑल। तो इस तरह की जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा जो है क्या किस तरह की प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, जिसमें कि जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या होता है, फीबली, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, फीबली मैग्नेटाइज होता है, मतलब स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, फीबली, हल्का फुल्का वो मैग्नेटाइज हो रहा है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो नंबर 1, फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, नंबर 2, मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड, एंड नंबर 3, द मैग्नेटिक लाइन प्रेफर टू पास थ्रू पैरामैग्नेटिक मटेरियल इन कंपेरिजन टू एयर। जैसे कि दूसरे वाले में अभी हमने देखा था कि इससे पहले वाला जो हमने स्टडी किया था उसमें वो फील्ड लाइंस
अंदर से पास करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अलाउ कर रहा है कि वो लाइन फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इससे होके पास करे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे होके पास करिए, आप देख सकते हो मैग्नेट के अंदर से, ये मैग्नेट है आपका और इस मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हुई आपको दिख रही है। ठीक है, तो जितनी भी फील्ड लाइंस है कोई बाहर से नहीं जा रही बल्कि सारी अंदर से जा रही है। 4th पॉइंट, a paramagnetic rods set itself parallel to the field। अब जो वहां पे हमने जो रॉड लिया था है ना डायमैग्नेटिक के केस में, तो डायमैग्नेटिक के केस में जो रॉड था वो क्या था, वो आपको देखने को मिला होगा वहां पे, वो परपेंडिकुलर हो गया था मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन यहाँ पे जो रॉड है, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये जो है पैरामैग्नेटिक रॉड जो है वो पैरेलल हो गया है, मतलब इस दोनों के बीच जो एंगल बन रही है वो 0 डिग्री की एंगल बन रही है, राइट। तो इस तरह से ये 4th प्रॉपर्टी भी हो। प्रॉपर्टी नंबर 5, अ पैरामैग्नेटिक लिक्विड्स इन यू ट्यूब राइजेस इन लिम्ब। अब ये जब मैंने उसमें डाला था, इससे पहले जो हमने स्टडी किया था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, तो उसमें जब हमने यहाँ पे उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, वो क्या कर रहा था, उसको डिप्रेस कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे उसके जो भी आप पैरामैग्नेटिक लिक्विड अगर इस यूट्यूब में आप लेते हो तो उसको राइज कर देता है ये। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी उससे जस्ट रिवर्स जा रही है, तो आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था उसमें जो है टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे देखो, फॉर ए गिवन मैग्नेटाइजिंग फोर्स द ससेप्टिबिलिटी is inversely proportional to the Kelvin temperature. This one is the susceptibility. This one is inversely proportional to the Kelvin temperature, and susceptibility into temperature is equal to C mu naught, where which is known as Curie's law, and this one C is called Curie constant because you are placing this C in place of proportionality. तो magnetic thermometer are based on क्यूरीज लॉ, क्योंकि ये मैग्नेटिक थर्मामीटर भी जो है वो क्यूरीज लॉ पे बेस्ड है और यूज्ड टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर, और ये वेरी लो टेम्परेचर को भी मेजर करने में कैपेबल होता है, इसलिए क्यूरी लॉ पे ये बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 7। जी हाँ, इस प्रॉपर्टी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, वहां पे आपने देखा था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव थी, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है आपकी पॉजिटिव है। और नेक्स्ट में रिलेटिव परमिएबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्लाइटली मोर देन 1। तो डायमैग्नेटिक के केस में वो लेस देन 1 था, यहाँ पे मोर देन 1 है, और परमिएबिलिटी जो है वो भी यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। तो इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टी जो है ये आपके लिए, जो आपके एक तरफ से पूरी जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, ये सेकेंड वाले का पार्ट है जिसमें आपने पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पूरा स्टडी किया है। होपफुली ये बिल्कुल ही कंफर्ट रहा होगा। अब इसके बाद मैं आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बताऊंगा।